Experimental designs continued. As we said, sometimes we mix designs according to the requirement of our problem, hypothesis, and nature of the variable. Another type of research designs are called quasi-experimental designs. The term quasi-experimental is used for the designs that look a lot like true experiments, and they are also statistically analyzed in the same way. The typical quasi-experiment has a subject variable as an independent variable. In quasi-experiments, although the researcher wants to compare groups, he or she does not control the nature or timings of the treatment or comparison variables. Now that sounds interesting or puzzling because we say that in experiment, the independent variable is actually controlled or manipulated by the experimenter. Hence, they are not called true experiments, but quasi-experiments are also experiments and they are needed. Why they are not true experiments? Because groups or subjects are not randomly assigned. They are a sample of convenience. They may not have a comparison group. It is typical of clinical research. And for example, within subjects, repeated measures is also used. And it is less subject intensive, which means the subject is not that intensely studied as in a lab. Well, pre-test, post-test one group is one example. One set of measures is taken before and after treatment or happening or intervention. Then we compare. The analysis that we do statistically is paired sample t-test, and the weakness is there is no comparison or control group. Now, the context for quasi-experiments. In human behavior and mind and mental faculties, many variables cannot be manipulated directly. One deterrent to manipulation of variables in experiments is the ethical consideration. Let's look at an example. What are the barriers to manipulation? Well, it is ethical to survey or otherwise observe the use of drugs by college students. And the number of studies in which we ask them or observe them or ask their counselors to report, but those are not experimental studies. So we can observe them or ask them, लेकिन by no stretch of imagination, कितना भी आप ख्याली घोड़े दौड़ाएं और सोचें और गौर करें कि किस तरह से इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ये तो एथिकल नहीं होगा किसी भी तरह कि हम एक ग्रुप बनाएं, उन्हें ड्रग यूज़ कराएं और उनकी एक्टिविटीज़ को एक ऐसे स्टूडेंट से कंपेयर करें जो कि ड्रग यूज़ नहीं कर रहे. तो हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते ड्रग देना अनलेस किसी मेडिसिन में कोई मॉर्फिन हो और वो मेडिकल रिसर्च में हो रहा हो. साइकोलॉजी रिसर्च में आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि उनका ड्रग यूज़ आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते. वो हो सकता है, तो इन दैट केस यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग इट. कुछ और भी बैरियर्स हैं, हम कैसे मैनिपुलेट क्यों नहीं कर सकते. मदर नेचर. कुछ वेरिएबल्स इंसानों के ऐसे हैं सच एज द बायोलॉजिकल सेक्स दे आर बॉर्न विद, मेल और फीमेल. उसको एक्सपेरिमेंटल वेरी या मैनिपुलेट नहीं कर सकता. कुछ और वेरिएबल जैसे कोई वाकया हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, तूफान हैं, हरिकेन्स हैं, या अननेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जैसे जंग है, वॉर्स हैं, एयरप्लेन क्रैश है, आर बोथ फिजिकली एंड मॉरली डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट. वो वेरिएबल मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते. हाँ, कर क्या सकते हैं आप बताएं. तो क्या हम इस फिनोमेना पे, इन चीज़ों पे जो गुजरती हैं लेकिन हमने नहीं कॉज की, लैब में नहीं की या हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या हम उनको स्टडी कर सकते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर ऑफ इंटरेस्ट और बड़े फैसिनेटिंग है और ये इंसानी तजर्बात में एक अहम रोल अदा करते हैं. इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते. डेथ ऑफ अ लव्ड वन, you cannot do an experiment on that, but you can use that to see whether doing a lot of meditation
or praying a lot or taking extra care with your health helps people recover emotionally after the death. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रोवाइडिंग एथिक्स अलाउ करे कि गम से गुजरते हुए एक शख्स पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर साइंस फॉर डूइंग सच एन एक्सपेरिमेंट. सो हम इंतज़ार करते हैं कि मदर नेचर अपना काम करे, फितरत कुछ ना कुछ कर रही है, और फिर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट देखते हैं और उसको उससे कंपेयर करते हैं जब ये इफ़ेक्ट मौजूद नहीं था. फ़र्ज़ करें इससे पहले वो कैसे थे और बाद में कैसे थे. मसलन अगर हमने रीडिंग एबिलिटी मर्दों की औरतों से की है, वो मर्द और औरत अल्लाह ताला ने पहले ही बना दिए हैं. सो मदर नेचर, फितरत ने, नेचर ने डिवाइड किया है लोगों को 2 बायोलॉजिकल सेक्सेस में, राइट. सो हम उनकी रीडिंग देखना चाह रहे हैं. नाउ रीडिंग एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, बट द फर्स्ट वेरिएबल जेंडर विच इज़ अ बिटवीन सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑलरेडी डेजिग्नेटेड. इसकी एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियसली ये नेचुरली अकरिंग होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिल जाते हैं, उन वेरिएबल्स का बड़ा इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस हैं. जितनी मिसालें मैंने दी, वॉर या अर्थक्वेक या अननेचुरल डिज़ास्टर्स या नेचुरल डिज़ास्टर्स, उन सब की इम्प्लिकेशंस हैं. और जैसे हम बना दिए गए हैं मर्द या औरत या डिफरेंट रेस में या डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनको स्टडी करने की ह्यूमन बिहेवियर पे किस तरह से वो असरअंदाज होते हैं, उसकी एक इम्पॉर्टेंस है और उसकी बड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस हैं, ताकि आप उसके हिसाब से आगे ह्यूमन बिहेवियर को, लोगों में जो डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से उनके लिए कुछ इंटरवेंशंस डिज़ाइन कर सकें. तो हम इन ऑब्जर्वेशन और कोरिलेशन प्रोसीजर्स को भी इस्तेमाल करते हैं और पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से उनको मिला के इस्तेमाल करते हैं. ये कॉज़ाई का एक स्ट्रेंथ है. वीकनेस भी है, इसमें कंट्रोल नहीं होता. कॉजेशन तो आप कह नहीं सकते कि कॉज एंड इफेक्ट है. आप ये नहीं कर सकते कि मैनिपुलेट करें और बाकियों को कांस्टेंट रखें. तो सब्जेक्ट जो है, ही और शी कैन ओनली टेस्ट सब्जेक्ट्स हु हैव ऑलरेडी हैव द कैरेक्टरिस्टिक इन सम वेरिंग डिग्री and then compare them on the basis of behavior of interest. If high IQ subjects perform some task better than low IQ subjects, we cannot say that IQ produced or caused the difference. क्योंकि और भी बहुत से डिफरेंस हो सकते हैं लोगों में, मोटिवेशन है, एजुकेशन है, उस वक्त की कोई और उनकी सिचुएशन या कंडीशन है. तो जब सब्जेक्ट वेरिएबल को इन्वेस्टिगेट करें तो हम सेफली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि जो उनके बिहेवियर में डिफरेंस आ रहा है किसी एक वेरिएबल पे, वो उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, जिस तरह के हम ट्रू एक्सपेरिमेंट्स में सेफली एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिजल्ट आ रहा है, वो जो डिफरेंस आ रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कॉज हुआ है. सो वीकनेस इज दैट वी कैन नॉट infer causation from quasi experiment.